Hello guys, welcome back to the channel. It's me Manshur Arora and welcome back to the economic class. So in this session, we will cover the last topic of this chapter, that is excess demand. So this is a part 7. I know the chapter is full on. Like we have reached the part 7 lesson for this chapter. But now it's the last topic. So let's wrap it up. Because if you know the previous topic, if you say demand, you will be easily able to understand this topic as well. Okay. So what is this topic all about? It is all about excess demand. Means AD is more than AS at full employment level. जब हमारा aggregate demand ज्यादा होगा aggregate supply से at the full employment level, मैं बार बार बोल रहा हूँ full employment level, आपको लिखना है ये word. If you miss this word, you will lose your marks. ठीक है? So when there is an excess of aggregate demand with respect to aggregate supply at full employment level, then there is an excess demand. Okay. So if I'll say according to all these authors, it means the same. Okay. Last lesson में भी हमने तीनों author के respectively पढ़ा था, but it is the same for this one. Okay. So at full employment level, AD is more than its excess demand. AD exceeds AS at full employment level, excess demand. So, but same definition as written 3 times according to 3 different authors. So you can just fill the sentences accordingly and just can write it exam whenever whosoever definition is clear. Okay. So moving on to the graphical representation of AD, excess AD, it means that हमारा AS की लाइन तो रहेगी stagnant जैसे पहले थी, AS की AD की लाइन हमारी पहले वाली जो यहाँ पे थी वहीं पर रहेगी, बट उसके ऊपर हम AD की लाइन और ड्रॉ कर देंगे जिससे हम शो करेंगे there is an excess demand and there is a gap, and this is the gap. This gap is known as inflationary gap. मतलब अगर आप नॉर्मल आपने जब डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था 11th क्लास में, अगर आप उसके सिनेरियो के हिसाब से सोचेंगे तो आपको यही सेम चीज समझ आएगी कि जब डिमांड बढ़ जाती है एंड सप्लाई उतनी ही रह जाती है तो इट मींस कि लोगों को ज्यादा सामान चाहिए और उतना सामान नहीं है तो महंगाई बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशनरी गैप इससे क्रिएट हो जाता है. ठीक है, दिस गैप इज पूरा कॉजेस क्या है, जैसे मैं पहले पढ़े थे टू सेक्टर इकोनॉमी के अलग से बताऊंगा आपको, मैं फोर सेक्टर इकोनॉमी के अलग से बताऊंगा. अब डिमांड बढ़ रही है, व्हाट डज दिस शो? इट शोज दैट कि हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, तभी तो डिमांड बढ़ रही है. कंजम्पशन बढ़ रही है मतलब हायर एमपीसी लोअर एमपीएस, सेव नहीं कर रहे लोग, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आ रहा है? इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज हायर, बाय द गवर्नमेंट और बाय द इंडिविजुअल्स आर हायर, and there is a higher profit expectation from them. Profit expectation is higher. ठीक है. So both these reasons, both these causes are one of the causes in the two sector economy for excess aggregate demand. For excess aggregate demand. Okay. And if I talk about four sector economy, then there is will be a little change. Like पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम थे, अब ज्यादा हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा हो जाएंगे, बट अब इम्पोर्ट कम हो जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास डिमांड ज्यादा है, अब हमारे पास प्रोडक्शन भी ज्यादा है, मतलब प्रोडक्शन है इतनी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. ठीक है, बाहर सामान भेजेंगे क्योंकि बाहर की डिमांड आ रही है, वहां भेजेंगे, अब हम मंगाएंगे. तो लेस एंड डिक्रीज इन टैक्सेशन रेट, टैक्सेस के रेट्स भी हमारे कम हो जाएंगे, टैक्सेस के रेट्स में हमारे डिक्रीज आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि अब हम टैक्स कम भरेंगे गवर्नमेंट को, अब हम इसी से. इन्फ्लेशनरी गैप होता है हमारा. एक्सेस डिमांड के कॉजेस क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप रहेगा, रियल जीडीपी में कोई राइज नहीं रहेगा. रियल जीडीपी क्या होता है वो आई नॉट एक्सप्लेन हियर बिकॉज़ आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इंटरनेशनल इनकम पर चैप्टर के अंदर. तो रियल जीडीपी आप वहां से याद करके आएंगे. No increase in the real GDP and there is no change in employment level because we have already attained the proper utilization of resources. So there is no change in employment level. तो जितने resources है 40 million उसको use कर चुके हैं, but still demand is very high. That's why we are having excess demand. ठीक है, and price level तो बढ़ जाएंगे क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई है, ज्यादा से ज्यादा माल चाहिए, अब माल इतना है नहीं तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द टाइम. जैसे प्रीवियसली पढ़ा था वैसे ही अभी भी सेम यही है कि भैया ये जो चीजें हैं, ये जो एक्सेस डिमांड है, हाउ कैन बी एबल टू मेजर इट, हाउ कैन बी एबल टू करेक्ट इट. नहीं करेक्ट कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे? एक्सेस डिमांड हो गई है, अच्छी थोड़ी हमारे इकोनॉमी के लिए, अच्छी नहीं है, तो हाउ टू करेक्ट इट? वी कैन करेक्ट इट थ्रू टू मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स एंड फिस्कल मेजर्स. मॉनेटरी मेजर्स कौन यूज करता है? आरबीआई. फिस्कल मेजर्स कौन यूज करता है? दोनों को अपने मेजर्स के थ्रू एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करना पड़ता है. कैसे करेगी करेक्ट हो?
The fiscal measures के through by the government can decrease their government spending. जितनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग डिक्रीज कर देगी, इतना खर्चा कम कर देगी, जिससे क्या होगा, लेस इनकम जनरेट होगी. लोग अगर ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे तो वो डिमांड कम कर देंगे, नहीं ज्यादा कंज्यूम करेंगे. दूसरा, टैक्सेशन इंक्रीज कर दो. डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं बचेगी लोगों के पास. तो इनकम नहीं बचेगी तो कंजम्पशन कम करेंगे. जब कंजम्पशन कम करेंगे तो दे नॉट बी एबल टू बाय मच, which leads to lower demand. तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमारी फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में देखो तो क्या, बैंक रेट बढ़ा दो भाई, लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना शुरू कर दो, तो पैसा छोड़ना ही नहीं है. मॉनेटरी सप्लाई नहीं छोड़नी इकोनॉमी के अंदर. जितना मनी सप्लाई इकोनॉमी में होगा उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा. तो वही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो मेजर्स होते हैं वही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स होते हैं. ठीक है, एक्सेस डिमांड को भी कंट्रोल वही मेजर्स करते हैं कि आप सीआरआर बढ़ा दो, आप एचएलआर बढ़ा दो, आप रिजर्व रेपो रेट बढ़ा दो. इससे क्या होगा, आम जनता के पास बचेंगे, बैंक के पास पैसे कम बचेंगे, बैंक क्रेडिट नहीं दे पाएगा, बैंक क्रेडिट नहीं दे पाएगा तो बहुत इंडिविजुअल्स लोन नहीं ले पाएंगे. लोन अगर ले भी पा रहे हैं तो बैंक रेट बढ़ जाएगा, तो मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो वो फिर भी नहीं ले पाएंगे. इससे क्या होगा, तो ये होगा कि हमारी इन्फ्लेशन कम, हमारा एक्सेस डिमांड कम. ओएमओ को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे हम सिक्योरिटीज को सेल कर देंगे. सिक्योरिटी बेच दो, अपनी सिक्योरिटी बेच दो किसी को और पैसे ले लो. पैसे ले लिया ना, मनी सप्लाई पे चला गया, मनी सप्लाई पे खत्म. ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब अपनी जो लोन की मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो उसको बढ़ा देंगे, तो फिर पैसा और ज्यादा आ जाएगा हमारे पास. इससे क्या होगा, आम जनता के पास पैसे फिर भी कम बच जाएगा. So these are the measures which can be used to decrease the monetary supply in the economy, and which also leads to decrease in the inflation rates and inflationary gap, and which helps in controlling the excess aggregate demand in the economy. समझ आया यहाँ तक? अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, कंक्लूजन. तो कंक्लूजन हम क्या बोलेंगे, it is the thing which creates inflationary gap. It also leads to rise in prices. It also leads to increase in exports, leads to fall in imports. मतलब there are certain benefits of it, but there are majority of harmfulness. तो हम इसको ठीक करना पड़ेगा. हम क्वांटिटेटिव फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के साथ इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं. This is all about excess demand. I hope this is clear to you because it is just similar to the deficit demand. If you have any doubts, you can drop them in the comment section. So with this, we have just completed our chapter number 3 as well. That is aggregate demand and aggregate supply, determination of income and employment. And with this, we have ended up with our macroeconomic syllabus. And in the next video, we will just understand few questions and just go to go with this subject as well. Okay, so do prepare your notes, do prepare well. Thank you so much for watching this video. Full playlist is available on our channel. Go there, refer any video, refer any chapter. If you find any doubt in macroeconomics, you can drop down your doubts in the comment section. Until then, stay safe, stay healthy. Thank you so much. Goodbye.